सर कौन सा? बफर लेक्चर देख लिया था ना, वो जो बीच वाला जो मैंने बोला था कि ये देख लेना। हाँ सर, हिस्ट्री वाला। हाँ हाँ हाँ। हाँ सर, देख लिया है था। ना, तो ठीक है, तुम्हारे फिर क्वेश्चंस बन रहे होंगे तुमको फिंगर टिप्स के। हाँ सर। ठीक है। यस सर। और सर अभी, मतलब क्लिक नहीं होता इतनी जल्दी, हाँ मतलब कि टाइम लगता है करने में। ठीक है ठीक है, तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। और इनफैक्ट अभी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अभी कौन से सेवन्थ लेक्चर में क्या चल रहा है, क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? सर मैं अभी उसमें पहुंच गया हूँ मीनिंग्स पे, जैसे एक्साइटेशन एनर्जी, हम्म स्टेट, ग्राउंड स्टेट, हम्म। बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है ठीक है। ओके। तो ये चीज़ समझ में आ रही है, समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आती? नो नहीं सर, आ रही सर समझ में। आ रहा है सब समझ में, ठीक है। हाँ सर। ओके। अच्छा मुझे, ठीक है, तो मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ लेता हूँ ताकि तुम्हारा स्टेटस मुझे पता चल जाए। ठीक है, तो तुमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लिया? हाँ सर। ठीक है, तो मुझे एक्सप्लेन करोगे क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? यस सर। So, in photoelectric effect, and metal is any metal is kept between the any metal is kept in a container with low pressure and with low pressure, and where it is tracked with a light which has more frequency than threshold frequency, because threshold frequency is needed to bring electrons from deep inside the surface to the outside. And the formula for threshold frequency and um, given frequency is h nu is equal to threshold frequency. थोड़ा अटक गए तुम, फिर से बोलोगे? So in photoelectric नहीं effect, नहीं, लास्ट a लास्ट का बोल metal दो, is लास्ट का एच न्यू इक्वल टू। yes, sir. H nu is equals to threshold frequency plus kinetic energy, हम्म। or work fraction plus kinetic energy. ठीक है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके। सो Yes. what is the relation between kinetic energy and frequency of the light? Kinetic energy is directly proportional to frequency. If we keep the intensity same, and if we increase the frequency, the kinetic energy of the electrons uh, from emitter to receiver will be maximized. Okay, ठीक है। And what if I keep the frequency to be same and intensity if I increase, then what will happen? So can you repeat? I'm asking that what will happen if I keep the frequency to be same, frequency of the light that is getting struck to be same, and but the Yes. intensity getting increased. uh, if the intensity is directly proportional to number of electrons, number of photon electrons. If we increase the intensity of the light keeping the frequency same, Hmm. then more number of electrons will be emitted from the metal. ठीक है। ओके ओके। सो ठीक है ये। अच्छा, व्हाट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी? Planck's quantum theory. Yes. When light travels in the form of packets known as quantum, and their formula is E is equals to h nu, or and nu is can be written as c upon lambda, or wavelength. ठीक है, तो ये जो एनर्जी होती है E इक्वल टू एच न्यू, इज इट द Yes, sir. एनर्जी ऑफ वन फोटोन और इज इट द टोटल एनर्जी ऑफ द It लाइट? is the energy of one photon, वन known फोटोन। as packet. ओके। एंड व्हाट इफ आई वांट टू नो द टोटल एनर्जी? If we want to know the total energy, then it will be multiplied with the n, which is a whole number. ओके, so that means we can say that energy is n h nu, nh, n into h nu. quantized, right? Okay. Yes, sir. Okay, so now tell me, what is the reason why Rutherford model failed?
The reason that Rutherford model failed because it cannot define that why is electron is moving at a constant orbit and not dropping. The drawback of Rutherford model is that he cannot explain that why is electron moving in a specific orbit for more time, because Maxwell's theory says that if the electron is moved around the in a circular path, then its velocity will be changed at every point because of direction is not constant, and therefore it will lose energy, and and finally it will drop into the nucleus, ठीक है, सही है. Okay. and then the atom will freeze. Okay. So that was the drawback of. Okay. So what is the kinetic energy expression of a moving charged particle? Moving kinetic energy of moving charge particles. Sir, Q into V. हाँ, correct. Q into V. ठीक है. Okay. There is one expression that we have simplified for our calculation point of view. We have calculated Yes, the sir. value of H, the product of H and C. Yes, sir. Do you know that value? Yes, sir. Sir, What? 12,400. 12,400, correct. So what is the unit of that 12,400? So epsilon naught. Epsilon naught? No. Sir, EV. EV upon epsilon naught. Angstrom. Electron volt angstrom. Epsilon. Electron volt angstrom. Okay. So now tell me, Yes, sir. have you reached Bohr model you reached? No, sir. Bohr model अभी नहीं हुआ. Okay. Yes, sir. Sir, हाँ. आगे जाएगा. अच्छा. और क्या क्या था मुझे देखना पड़ेगा. Let me check. और अच्छा. Sir, और expression of energy. एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी. हाँ, वो रेडियस और वो सारी चीजें. Sir, रेडियस का एक्सप्रेशन. yes, sir. रेडियस का एक्सप्रेशन आया था. बोहर, खैर अभी बोहर नहीं पहुंचे ना तुम. Sir, explain. यू हैव नॉट रीच बोहर Sir, मॉडल, अभी राइट? बोहर तक नहीं पहुंचे मैं. हाँ, तो Sir, अब 8. हाँ. Yes, sir. ओके. Sir, expression of energy or yes. तो 7th लेक्चर में क्या क्या था? Sir, expression of energy and time period. Time period of an electron in a specific orbit. टाइम पीरियड. अच्छा 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 अच्छा. Expression for frequency of time period. हाँ हाँ हाँ. Yes, sir. 5th लेक्चर में ब्लैक बॉडी और न्यूमेरिकल्स ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था. हाँ, sir. और 6th लेक्चर में, 6th में तो बोहर आ गया है. बोहर्स एटॉमिक मॉडल तुमने 7th तक देख लिया ना? हाँ, sir. तो बोहर एटॉमिक सर नाम याद नहीं था. अच्छा. तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या करा. पोस्टुलेट, बोहर पोस्टुलेट पढ़ लिए होंगे तुमने. हाँ, sir. सो व्हाट व्हाट मतलब जहाँ पे ये जो चीज़ फेल हो गई थी, क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड की, राइट? Yes, sir. तो रदरफोर्ड ने ये बोला था कि वो चीज़ नहीं हो पाएगा. क्या बोलते हैं, जैसे तुमने अभी बताया कि वो अपनी एनर्जी लूज करता जाएगा और अंदर घुस जाएगा न्यूक्लियस में. तो स्टेबिलिटी के ऊपर सवाल खड़ा हो गया था, है ना, रदरफोर्ड के. तो बोहर ने ऐसी कौन सी चीज़ सामने रखी जिसकी वजह से ये चीज़ हुई कि अब वो अंदर नहीं घुसेगा? Sir, Bohr said Bohr explained it because due to density. So because electron move in a circular orbit, the force of attraction or centrifugal force of attraction and
centripetal force and centrifugal force plays a role, and it does not drop in the nucleus. न्यूक्लियस, बिल्कुल ठीक है। तो Just like हाँ, तो ये बताओ मुझे कि yes, sir. ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, Yes, sir. इसकी वैल्यू क्या, कैसे, व्हाट 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 इज द वैल्यू ऑफ सेंट्रीफ्यूगल Sir, फोर्स? MVR. एमवीआर? तो वो एंगुलर मोमेंटम होता था वो तो। Yes, sir. Sir, for सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज mv स्क्वायर बाय आर। yes, sir. mv स्क्वायर बाय आर, करेक्ट? ओके, सो Yes, sir. ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, Angular momentum. एंगुलर मोमेंटम के बारे में बोहर ने क्या बोला था? ऐसा क्या खास बात बोली थी बोहर ने एंगुलर मोमेंटम के बारे में? The angular momentum can be depicted by the formula n into h by 2 pi, where n is a whole is the orbit number the electron is kept. इलेक्ट्रॉन, अच्छा। तो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस एन? Sir, it changes from orbit to orbit, and depending on the electron, electron are placed in the orbit where h upon 2p satisfy the electron. हाँ ठीक है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो इस चीज़ को। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन प्रॉपरली डिलीवर करने की कोशिश करो। Yes, sir. Sir, where the angular momentum is इंटीग्रल, intrigued or इंटीग्रल, yes, हाँ, इंटीग्रल मल्टीपल। सभी चीज है। So angular momentum, the electron is depend upon the angular momentum of that orbit or the radius of that orbit. व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस? Yes, radius is equals to 2 pi 2 pi radius, yes sir, 0.529 into n square by z. व्हाट इज जेड? Z is atomic number and n is orbit number. ठीक है, और व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन? Epsilon naught, oh sorry, एंगस्ट्रॉम, Armstrong. एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंड व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, So for nth ऑर्बिट? velocity 2.18 into 10 to power 6 z upon n, जेड अपॉन एन, meter per second. मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, ओके, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी? For energy, En is equals to En h atom into z square. क्या क्या क्या, फिर से बोलना। Sir, En is equals to En of h atom or hydrogen atom into z square. ठीक है, व्हाट इज ई एन ऑफ एच हाइड्रोजन आइटम? Is equals to minus 13.6 into z into into z square by n square. जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये किस में आता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस? So m ev. इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ, करेक्ट। और ठीक है, ठीक है। अभी तो ठीक है, अभी तुमने केवल सरफेशियल ही पढ़ा है ना? अभी ये सारी चीज़ें Yes. केवल नोट डाउन अभी तुम कर रहे हो, है ना? अब जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे मैं कराऊंगा तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है? तो हाँ सर, अभी रिवाइज भी करनी है। हाँ, थोड़ा सा रिवाइज करो, और कंसेप्ट वाइज तो तुम ठीक हो, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो, बाकी तो हो जाएगा, ठीक है? हाँ सर। और रिवाइज करते रहना, यस और तुम्हारे नोट्स जितने हाँ भी सर। तुमने अभी 7th लेक्चर तक बनाए हैं मेरे को सेंड कर दो, यस ठीक है? कोई डाउट है, कोई चीज़ ऐसी हाँ कोई सर। डिफिकल्टी जा रही है तो बताओ। एनी डिफिकल्टी? टाइम लग रहा है क्वेश्चंस करने में। टाइम लग रहा है, अच्छा
ठीक है, तो हाँ, तो शुरू। मतलब हाँ जैसे कि जो आपने एक क्वेश्चन किया था कि टाइम पीरियड आपने इतनी जल्दी से निकाल लिया, मतलब आपने पहले से ही उसमें प्रोपोर्शनल लिया था और मैंने एकदम बड़ा बिग भी ले लिया था, मतलब इस वजह हाँ से। ठीक है, अच्छा तुम पॉज करके सॉल्व कर रहे हो ना? हाँ सर, पॉज करके सॉल्व कर रहा हाँ हूँ। तो अच्छी बात है, पॉज करके सॉल्व करो। 1x में देखते हो कि कितना देखते हो, क्या क्या रेट रहता सर है? 1.75 और 2, मतलब अभी 7th और 8th, अभी जो 6 7 थे वो तो मैं एक वन नॉर्मल पे देख रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो देख लेना और जो पॉज करके देखते रहना, मतलब पॉज करके ट्राई करना। हाँ तो तुम्हें हाँ तुम्हारा ज़्यादा सही होगा। जैसे तुमने अभी तुम बता रहे हो कि तुम टाइम इंटरवल जो भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें तुमने अलग अप्रोच रखी थी, मैंने एक अलग अप्रोच रखी थी। तो तुम यस सर। खुद से करोगे तो तुम ज़्यादा जल्दी सीखोगे, ठीक है? तो तुम उसको करते रहो, हाँ सर। तो उससे तुम्हें पता चलेगा अच्छा ये मैंने गलती कर दी, है ना? तो यहाँ पे मैं और सही कर सकता हूँ। यस सर। सो कीप डूइंग दैट, हाँ उसमें कोई सर। दिक्कत नहीं है, ठीक है? और कोई भी यस। प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना, ठीक है? कोई डाउट, हाँ सर। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं रह जाती थी कि कुछ डाउट्स आ रहा है और अपना रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं है कुछ? नहीं सर, अभी तो आ रहा सर। चलो ठीक है ऋषि, हैव अ गुड डे। थैंक अपन नेक्स्ट थैंक यू। नेक्स्ट वीक मिलेंगे तो इस कोशिश करना कि जितने भी लेक्चर्स आए वो सारे के सारे तब हाँ सर। कंप्लीट हो जाएं, ठीक है? थोड़ा सा यस। स्पीड अप कर लो, है ना? हाँ सर। ओके, बाय बाय, थैंक यू टेक सर। केयर, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय।